Hello students, today we are doing the next part of our topic, that is the sources of finance for a joint stock company. Now we are doing, that is the retained earnings or the flowing back of profits, how it is being used as a source of finance by a joint stock company, right? So till now we have done shares, equity preference shares, then we have done the ways we are just issuing the equity shares, and now what is the long-term sources and which is being arranged by the owners, that is the funds, owners funds, that is the retained earnings. So what is the retained earnings? The retained earnings are the undistributed profits over the past years which can be used as a capital by the company is called to be retained earnings. So now how to calculate retained earnings? That is beginning period of retained earnings. Beginning period retained earnings, that is जो beginning में आपकी profits हैं पहले, plus उस साल में क्या income या losses हुए हैं आपके. If incomes, that to be added, losses हैं तो minus, और minus करेंगे उसमें से dividend distribute किया है जो during the year. So we'll find the retained earnings during the year. Okay. So that is not the part of the syllabus. It is just a calculation for your understanding what is retained earnings of the current year. So retained earnings or self-financing. So retained earnings are also known to be flowing back of profits and self-financing also. Okay, self-financing क्योंकि कंपनी खुद से ही फाइनेंस कर रही है, उसे कहीं बाहर से सोर्सेज नहीं लेने पड़ रहे हैं, और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट्स थे उन्हें फ्लो बैक यानी कि फर्दर यूज कर रही है, निकाल के उनका यूटिलाइजेशन कर रही है. So retained earnings or flowing back of profits refers to the process of retaining a part of the net profits year after year and reinvesting the same in business. This source is also called self-financing as it is an internal method of financing. The internal method है, that's why it is called being self-financing. Retained earnings are a popular source of capital for modernization and expansion of business. So company uses it for generally modernization and expansion. Okay. So what is retained earning? तो आपका क्या है, जो प्रॉफिट कंपनी पिछले सालों में जो प्रॉफिट कंपनी ने डिविडेंड्स बांटने के बाद बचा के रखा, राइट, जो प्रॉफिट बचा के रखा वो इकट्ठा हुआ एंड करंट ईयर में वो इकट्ठा प्रॉफिट पिछले सालों का जो कहा जाएगा, जो बांटा नहीं गया, दैट इज कॉल्ड टू बी retained earnings या flowing back of profits या self financing, क्योंकि करंट ईयर में कंपनी उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रही है. The amount of retained earning depends on several factors. Retained earning ज्यादा है या कम है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. लाइक फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट अगर ज्यादा है कंपनी के पास तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होने के चांसेस होंगे, और प्रॉफिट कंपनी का कम हो रहा है अगर, तो रिटेन अर्निंग के कम होने के चांसेस होंगे. More are the net profits of the company, greater is the capacity to flow back profits. ठीक है, ग्रेटर कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि कंपनी अपना डिविडेंड देने के बाद ज्यादा पैसा बचा सकती है अपने फ्लो बैक करने के लिए. डिविडेंड पॉलिसीज, कंपनी अगर जो है आपकी डिविडेंड पॉलिसीज जो है आपकी कंपनी की जो है बहुत ही लीनियंट है, जिनकी कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे देती है, जितना मिल रहा है प्रॉफिट उसका मैक्सिमम पार्ट डिविडेंड में देती है, तो उसके रिटेन अर्निंग्स कम होंगी. पर अगर कंपनी जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स रखती है डिविडेंड के लिए, तो कंपनी की जो है रिटेन अर्निंग्स या प्रॉफिट्स जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे. डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू व्हिच प्रॉफिट्स कैन बी रिटेन्ड और रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस. देन लिबरल और एंड रेगुलर डिविडेंड, अगर कंपनी लिबरल दे रही है, राइट, या रेगुलर डिविडेंड दे रही है, तो क्या होगा उसका, उसके पास कम प्रॉफिट होंगे, तो उनकी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी. A company which follows a policy of paying liberal and regular dividends every year may not be able to retain so much profits. Age of the company, नई कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो उनकी रिटेन अर्निंग्स कम होंगी, और पुरानी कंपनीज हैं तो उनकी रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होने के चांसेस हैं. The age of the company affects the practice of self-financing. New companies generally do not retain much profits due to their desire to satisfy the shareholders.
Old companies may distribute only a small part of profits among shareholders and may retain the major part of profits for flowing back. ठीक है, तो दो रीजन यहाँ पे हमें देखे क्या है, कंपनी की एज है तो कंपनी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसकी प्रॉफिट्स भी एडअप होते जाएंगे तो प्रॉफिट उनकी रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगी। दूसरा कि जो नई कंपनीज हैं वो ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बचा के रख सकती, उन्हें शुरू में अट्रैक्ट करना है शेयर होल्डर्स को, तो व्हाट दे डू, दे जनरली प्रोवाइड more dividends, right? More profits to be distributed to the shareholders so that they attracted toward the company and buy their shares. But old companies थोड़ा सा restrictive हो जाती हैं, वो एक limited amount of dividend ही देती हैं और बचा के रखती हैं profits, तो उनके लिए उनके पास जो है return earnings ज़्यादा हो जाती है। Now future plans. The future plans of a company regarding modernization and expansion also have an influence on retained earnings. अगर कंपनी के future plans हैं कि उन्हें modernization expansion करना है तो वो अपने profits को use कर लेती है तो उनकी retained earnings कम हो जाएगी। So now, what are the merit or advantages of retained earnings? तो यहाँ पर हमारा है कंपनी को भी advantage है, shareholders को भी है और society को भी है retained earning का फायदा। तो पहले देखें कंपनी को क्या फायदे हैं। To the company, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंट है, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि अपने ही प्रॉफिट उन्हें यूज करने हैं, प्रॉफिट्स हैं उनके पास ऑलरेडी, उनको उन्हें कैपिटलाइज करना है, मींस क्या करना है, उन्हें रीइन्वेस्ट कर देना है बिजनेस में। ठीक है, सो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं देना है उनको, कोई डिविडेंड नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। सो इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग क्योंकि रेजिंग कोई चार्जेस नहीं है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्वड एंड नो नेगोशिएशंस आर टू बी मेड, नो चार्जेस फॉर रेजिंग द फंड्स, नो रिटर्न टू बी पेड ऑन रिटेन अर्निंग्स एंड नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नो चार्जेस ऑन एसेट्स क्योंकि फाइनेंस बाहर से नहीं ले रहे हैं तो कोई भी एसेट्स पे चार्जेस नहीं है, आपके एसेट्स फ्री है। इन फ्यूचर अगर कंपनी को फर्दर फाइनेंस की जरूरत होती है तो उनके पास एसेट्स हैं प्लेज करने के लिए और फर्दर फंड्स रेज करने के लिए। सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन्स फुली फ्लेक्सिबल, राइट, फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो फर्दर और रेज कर सकते हैं। नो चार्जेस इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स and no restrictions are put on the freedom of management to raise further finance by floating new securities in the market. Now, no delusion of ownership, voting right क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा, जो था voting right वही का वही है, voting right as it is है, so कोई delusion नहीं हो रहा आपका ownership का। Use of retained earnings does not disturb the voting control of the company, so ownership does not get dilution. This is diluted. Replace obsolete assets and grab opportunities. कंपनी के पास अगर कोई assets को जो उन्हें डिप्लीट हो गए हैं उनको रिप्लेस करना है, राइट, या कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है उन्हें ग्रैब करनी है इमीडिएटली, तो उन्हें इमीडिएटली उनके पास फंड है, अपने सेल्फ फंड है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, उन्हें कहीं से फंड रेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं और आपके अपने एसेट को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, the company can redeem debts and replace obsolete assets with the help of retained earnings. A company with large resources can take advantage of business opportunities as well. उसे वेट नहीं करना पड़ेगा फंड के, शॉर्टेज ऑफ फंड के लिए उसे कोई अपॉर्चुनिटी जो है लूज नहीं करनी पड़ती। स्टेबलाइज रेट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, उनके पास रिटेन अर्निंग्स है, तो अगर किसी साल अगर प्रॉफिट्स कम हो गए तो अपने रिटेन अर्निंग से वो अपना प्रॉपर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं और उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज बनाए रख सकते हैं। ठीक है, reserves created by flowing back of profits can be used to stabilize the rate of dividend on equity shares. So regular dividend help to improve relations with the shareholders और एक अच्छी इमेज आपकी कंपनी की क्रिएट करता है मार्केट में। More financial strength and ability to face unforeseen contingencies. Unforeseen contingencies कुछ भी आपके जो ट्रेड साइकिल्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी कंटिजेंसीज हो सकती है जो इकोनॉमी में बिजनेस ट्रेड साइकिल में कंपनी को फेस करनी हो सकती है और उसके लिए उसको फंड चाहिए है, तो वो फंड अगर उनके पास रिटेन अर्निंग्स है तो उन्हें कहीं भर भी मुश्किल नहीं होगी, वो अपने इंटरनल फंड्स राइट यूज कर सकती है। So it adds to the financial strength and credit worthiness of the company. It can face unforeseen contingencies and trade cycles with ease and economy.
Now, shareholders को क्या फायदे हैं? Safety of investment. Shareholders of the company having large reserves and surplus get the benefit of safety of investments. Shareholders of a company, this is comma, having large reserves and surpluses. कंपनी के शेयरहोल्डर्स जिनके पास, जिन कंपनीज के पास रिजर्व एंड सरप्लसेस ज्यादा होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहती है. रेगुलर डिविडेंड, शेयरहोल्डर will receive regular dividend as deficiency of 1 year will be made good out of the undistributed profits of the previous years. Increase earning capacity. Flowing back of profits will add to the profitability and earning capacity of the company. Shareholders will benefit from prosperity of the company. तो क्या earning capacity कैसे बढ़ाएगी? अगर कंपनी अच्छी मशीनरी लगा रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, मॉडर्नाइजेशन कर रही है, ठीक है, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रही है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उस प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट शेयरहोल्डर्स को भी मिलेगा. Now, to the society. अब सोसाइटी को क्या फायदे हैं? मोर कैपिटल फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सेविंग्स. कॉर्पोरेट अर्निंग कह सकते हैं क्योंकि अर्निंग्स ही है कॉर्पोरेट सेक्टर की, कंपनी की अर्निंग्स है या कंपनी की सेविंग है. एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. तो क्या हुआ? इकोनॉमी में और कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है? आपकी प्रोडक्शन बढ़ता है और कंपनी की और कंट्री की ग्रोथ होती है. रिड्यूसेस कॉर्पोरेट फेलियर. सरप्लस मेक्स अ कंपनी मोर स्टेबल. सरप्लसेस जिस कंपनी के पास है वो कंपनी स्टेबल होती है. द रेट ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स रिड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेस टू एब्जॉर्ब डिप्रेशंस इन अदर क्राइसिस. तो क्या है? कॉर्पोरेट फेलियर रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है. वो शॉक ऑब्जर्वर है, क्या उनकी रिटेन अर्निंग उनके लिए शॉक ऑब्जर्वर है. उनको जो है टफ टाइम में उनके लिए उनके पास फाइनेंस अवेलेबल होता है, जिससे कि वो भी उन जो है डिप्रेशन पीरियड से या बाहर निकल सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज हमको ग्रैब कर सकते हैं और कंपनी के लिए और प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. मॉडर्नाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन स्कीम. Companies can adopt modernization and rationalization schemes. These are to industrial productivity and flexibility. Higher standard of living. Higher standard of living क्या हुआ? कि कंपनीज जो हैं अब वो प्रोडक्ट बना रही है लोअर कॉस्ट पर, गुड क्वालिटी, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा लोग खरीद सकते हैं क्योंकि उनका प्राइसेस कम हो गया, उसका बेनिफिट बहुत लोगों में पहुंच रहा है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. Business enterprises can produce better quality goods at lower cost. Society at large would be the beneficiary of the increased standard of living by consuming those goods at lesser price. Now, demerits. अब demerits क्या है? हमारे shareholders point of view से है और company point of view से. Shareholder point of view से क्या demerit है? The management of a company may not always use the retained earnings in the best interest of shareholders. कभी कभी वो अनप्रॉफिटेबल फील्ड्स में भी मनी लगा देते हैं और वो क्या है? मनी लॉस हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, तो कंपनी को प्रॉफिट होने की जगह कंपनी को नुकसान हो जाता है, राइट, और उससे शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है. दूसरा, द प्रैक्टिस ऑफ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मे बी यूज्ड टू मैनिपुलेट शेयर प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. हेवी रीइन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर causes dissatisfaction among shareholders as they get low dividend. क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन हो सकते हैं शेयर प्राइसेस, और दूसरा जो बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे क्या होता है? आपका शेयर होल्डर्स को तो मिल ही नहीं रहा डिविडेंड. कंपनी जो है पैसा यूज कर रही है री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शेयर होल्डर्स में डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उनका पैसा उनको ना मिलकर कंपनी में लगाया जा रहा है, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए. ठीक है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका डिमेरिट्स है? टू मच डिपेंडेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स में टेम्प्ट द मैनेजमेंट टू इश्यू बोनस शेयर्स. अभी क्या है? ज्यादा पैसे होंगे उनके पास रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, तो क्या करता है? उन्हें मैनेजमेंट को लगता है चलिए जो है कंपनी को शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे दिए जाते हैं कि उनकी इमेज अच्छी हो जाएगी, हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं, और उससे क्या होता है? कैपिटलाइजेशन हो जाता है आपके प्रॉफिट्स का, और कई बार ये ओवर कैपिटलाइजेशन कर देता है जिससे कि रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी की कम हो जाती है. ठीक है, सो too much dependence on retained earnings may tempt the management to issue bonus shares to the equity shareholders. Frequent capitalization of profit may result in over capitalization.
तो आप सोच रहे होंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन, कंपनी में पैसा ज्यादा है तो उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान ये है कि इट्स सिंपल से एग्जांपल, राइट, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी की कैपिटल तो बढ़ रही है पर प्रॉफिट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। लेट्स सपोज कंपनी 10,000 रुपए पर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 10% कमा रहे हैं, ठीक है। अब 10,000 का क्या हुआ, 11,000 कर दिया आपने, अभी भी आप क्या है वो 1,000 रुपए ही कमा रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, तो आपका 10% आपका क्या रहा, 10% नहीं रहा, अब 10% से कम हो गया, क्योंकि इट इज 1,000 डिवाइडेड बाय 11,000 into 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो आपका जाता है वो क्या हो जाता है, 9.some% हो जाता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, राइट। तो इसलिए ओवर कैपिटलाइजेशन आपके प्रॉफिट जो है जो ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी के लिए अच्छा नहीं, बुरा भी हो सकता है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. So retained earnings, I hope so children it is clear what are the merits, what are the demerits. So revise it in the small parts so the things will be clear to you, and you can retain it as well, like the retained earnings, okay, that will be beneficial to you. So retain it for the long run, you have to revise on the regular basis. So I am ending up the chapter here, and most important thing, that is like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye students.